Arrays are so let's start now. Next topic is all about arrays, how to use arrays in NetBeans and Java. तो arrays का काम ये है कि देखो what happens like हमने थोड़ा डिस्कस किया था ये कि हम लोग if we have if we want to use multiple values, like let's say I want to input 100 numbers and then I want to print the values present in those 100 variables. So it's difficult for me to uh, write input statements for all 100 numbers, right? And then write print statements for all 100 numbers. So that's why we prefer using certain aspect where all the things can be easily managed. So we use arrays in that case, like if I declare one array of the size 100. So with one line only we can create 100 sizes where 100 locations where we can save 100 values, right? So name is one, but it can hold 100 types of values, right? Type should be same, but 100 different values can be saved. हम जैसे array बनाए ARR नाम से, ARR नाम से 100 उसका साइज दे दिया तो 100 वैल्यूज उसके अंदर हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है? बट उसमें एक कंडीशन एक ही होती है कि all values should be of similar data type. There's only one condition, all values should be of similar data type. अगर integer है तो सारे integers, अगर वो characters है तो सारे characters, अगर वो strings है तो सारे strings, right? Sorry. So that was the concept of arrays that we just have started last time. Now इसकी practical implementation कैसे है वो मैं आज दिखाता हूँ आपको. हमने we have done this how the array has to be declared. We put a bracket after the data type, like this is the way, double square brackets, name of the array is equal to new, then again the same data type, and then how many values we want to give. 5, let's say, so 5 will be the size. So here in this case 5 values can be there, right? And this is the 5 this is how we assign these 5 values to that particular array. इससे हम data type लिखेंगे, array का नाम लिखेंगे with the square bracket is equal to curly brackets के अंदर वो 5 values दे देंगे जो initialize करनी है. So these are initial values, right? Then this I told you that to print all these values, how things will work. We run a for loop which will run from 0. Why 0? Because the first location index number is always 0, right? And we want to run this print statement 5 times. So we'll start from 0 and go up to 4. We'll write less than 5 because we have 5 values. 0, 1, 2, 3, 4, 5 times it will run, and each time this I will be updated. पहले केस में 0, फिर 1, 2, 3, 4, चारों पांचों values जो है वो print हो जाएंगे. Okay, next one more thing is that in place of this number we can also put marks.length. Now this method reads the length of the array, how many characters or how many values we can enter into that array, right? So ये भी एक वे है कि वो लेंथ marks.length डाल देंगे तो वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा क्या उसकी लेंथ है, उतनी बार लूप चलेगा, right? Now one simple example is given here, like हमने क्या किया है कि मान लो ये 5 जो वैल्यूज थी, ये 5 वैल्यूज हमने जो एंटर कराई ये है बच्चों के मार्क्स आउट ऑफ 400, लेट्स से, राइट? नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ इट, देन वी वांट टू फाइंड आउट दैट अगर एवरेज जो है या परसेंटेज कह लो, हमें परसेंटेज निकालना है कि 400 में से बच्चों का टोटल मार्क्स इतने पांचों बच्चों के हैं, हमने सबका परसेंटेज निकालना है. उसके बाद कैलकुलेट करना है, अगर परसेंटेज 40 से ज्यादा है तो लिखेंगे पास है, नहीं तो फेल लिख देंगे, राइट? So this loop will start from 0 to less than 5
5, marks dot length in this case, in our case is 5, तो ये 0 से लेकर 4 तक चलेगा। और हर बार क्या करेंगे, मार्क्स आई मतलब पहली वैल्यू आई की 0 है, तो मार्क्स 0 मतलब पहला मार्क्स, जो सबसे पहले मार्क्स हमने असाइन किए ऊपर, राइट, 3 4 6 इसको कंसिडर किया जाएगा। डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स हमें देने पड़ेंगे पहले, टोटल मार्क्स आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 0। मैं काम करता हूँ, आई विल जस्ट ओपन दैट फाइल, मैंने कल एक फाइल बनाई थी इससे रिलेटेड, आई विल जस्ट शो यू दैट, सीधा वहीं से okay, if you can see this is the program that we have made. So अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि हमने अगर जब भी ये classes sorry your whenever you need to work on arrays, then we have to create a class file, right? It doesn't works on the normal frame. For that we need to go to a class. अब वो class कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। जैसे यही प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट है जावा एप्लीकेशन 3, न्यू फाइल पे क्लिक किया, तो सॉरी ये नया, हाँ ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम आ गया जिसमें हम ये फाइल बना रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या करते थे, स्विंग जीयूआई फॉर्म में जाते थे, जे फ्रेम फॉर्म पे क्लिक करते थे, तो हमारा फॉर्म क्रिएट होता था। बट फॉर वर्किंग इन क्लासेस वी कैन नॉट गो देयर, वी हैव टू गो टू जावा ओनली। जावा का पहला ऑप्शन है जावा क्लास, इसको नेक्स्ट करो और यहाँ पे क्लास का नाम दो। जैसे हमने ये न्यू क्लास पहले बनाई हुई है तो नाम चेंज करके ओपन कर दो। जैसे आप ओपन करोगे यू विल गेट इनटू दिस विंडो, जैसे ये दिख रही है, वहाँ पे आपको ये कोडिंग करनी है, राइट। ये फॉर्म से कनेक्टेड नहीं है, फाइन। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट ए क्लास। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आप कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट करनी है तो यहाँ से राइट क्लिक करके वहाँ हम जे फ्रेम फॉर्म क्लिक करते थे। दो तरीके हैं ना, एक तो यहाँ से, दूसरा है आप इसी जो प्रोजेक्ट है इस पर राइट क्लिक करो, न्यू ऑप्शन है और जे फ्रेम फॉर्म क्लिक करेंगे फॉर्म बनाने के लिए। और अगर आपको एरेज हैंडल करने तो जावा क्लास पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे ये पहली लाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, पब्लिक क्लास, जो नाम आपने दिया है क्लास को, न्यू क्लास से एक क्लास बन जाएगी। देन यू हैव टू टाइप ऑल दिस स्टफ। अब यहाँ पे आपको पहले मेन मेथड टाइप करना पड़ेगा, दिस इज रिटन एज इट इज, हर बार यही लिखते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग। दिस में स्ट्रिंग लिखने का मतलब है इसमें स्ट्रिंग एरेज जो है वो हम कंप्यूट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। फिर ये हमने एरे डिक्लेयर किया, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन नेम ऑफ द एरे इज मार्क्स, और हमने इसको 5 वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है, कॉमा लगा के। डबल था तो डेसिमल वैल्यू चले गई, राइट। फिर हमने एक वेरिएबल लिया टोटल मार्क्स, वो हमने ले लिया 400। मान लो ये सारे के सारे मार्क्स 5 बच्चों के हैं और पांचों के नंबर 400 में से इतने इतने आए हैं, राइट। फिर हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक, 0 से शुरू किया और मार्क्स डॉट लेंथ ले ली। मार्क्स डॉट लेंथ विल कैलकुलेट कितनी है, 5 है, ये ऑटोमेटिकली 5 ले लेगा ये। तो स्टार्ट फ्रॉम 0 आई लेस देन 5 मतलब आई 4 तक ये 5 बार लूप चलेगा, राइट। फर्स्ट टाइम आई 0, सो विल हैव a variable here double percentage, इसमें होगा मार्क्स आई इज 0, आई 0 मतलब पहली वैल्यू 394 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितना था 400, तो 394 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई 100, वो पहली बच्चा जो है जो फर्स्ट वैल्यू है इसकी एवरेज नहीं परसेंटेज निकल जाएगी, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम आई चेंजेस इनटू 1, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा आई प्लस प्लस की वजह से। फिर 1 लेस देन 5 इज ट्रू, सो विल कम हियर मार्क्स 1 मतलब ये 0 था, सेकंड 1 लोकेशन नहीं होता है, तो 285.5 कंसिडर होगा। तो 400 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, इसकी भी परसेंटेज आ गई। फिर आई हो जाएगा 2 के केस में 175.5 को 400 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, इसकी एवरेज। तो लाइक वाइज थर्ड केस में 3 पे 95 से हो गया,
राइट। उसके बाद जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। फिर हमने क्या किया, हमने अच्छा हमने एक यहाँ पे एक गड़बड़ ये की है कि जब फर्स्ट टाइम में i 0 था तो ये कैलकुलेट हो गया, उसके साथ ही बाकी स्ट्रिंग्स भी, ये चीजें भी रन हो गई, क्योंकि वी नीड टू प्रिंट एवरीथिंग फॉर एवरी लाइन। पहले फर्स्ट बच्चे जो है 394 के लिए हम लोग प्रिंटिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया हमने, एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट, राइट। तो हमने क्या किया, ये परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40, अगर जो परसेंटेज निकली 40 से बड़ी है तो रिजल्ट आ जाए पास, नहीं तो रिजल्ट आ जाए फेल, ठीक है। और हमने 4 चीजें प्रिंट की है। पहले में प्रिंट किया है i+1, i+1 क्यों किया, क्योंकि 0 था, तो हमने पहले बच्चे का आंसर देना है, हमने 0+1 कर दिया, तो 0+1 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा नंबर 1, ठीक है। आउटपुट विंडो में आपको दिखेगा 1 लिखा हुआ, तो नंबरिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये \t साथ में प्रिंट करना है, t का मतलब होता है टैब स्पेस, तो एक टैब का 8 स्पेसेस का डिस्टेंस जो है टैब प्रिंट वो रन हो जाएगा, उसके बाद जो कुछ भी प्रिंट होना है एक टैब के स्पेस के बाद प्रिंट होना है। फिर इसके बाद हमने पे क्या प्रिंट किया, मार्क्स आई है, मार्क्स 0 फर्स्ट केस में, पहली वैल्यू 94 394.0 प्रिंट होगा। फिर से टैब स्पेस देंगे और फिर परसेंटेज प्रिंट कर दिया, जितना परसेंट कैलकुलेट हुआ वो प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 टैब की स्पेसेस और फिर रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में अगर पास है या फेल्ड है वो प्रिंट होगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ ताकि हम लोग देख ले इसका आंसर क्या है। अब ये फॉर्म्स नहीं है तो आउटपुट कहाँ रन होगा, आउटपुट विंडो में रन होगा, राइट। ये नीचे आउटपुट विंडो है, अभी खुल जाएगी जैसे ही वो फाइल रन होगी। ये देखिए, इसी पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 1 की वैल्यू 394.0, फिर इसका परसेंटेज 98.5 आ गया परसेंटेज, और वैल्यू पास आ गई, रिजल्ट पास आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देन उसके बाद i इंक्रीज होकर 1 हो जाएगा, फिर 1 लेस देन 5 इज ट्रू, फिर अगेन इट विल स्टार्ट फॉर द 1 मार्क्स 1 मतलब 285.5 पिक किया जाएगा, उसका परसेंटेज निकला, उसको कंपेयर किया पास है या फेल है, फिर उस हिसाब से प्रिंटिंग कर, राइट। तो ये टर्न वाइज 285.5 आंसर, उसका परसेंटेज ये निकला और ये भी पास हो गया। फिर आई इंक्रीज होके 2 हो जाएगा, 2 के केस में इट विल पिक 175.5 और फिर उसकी परसेंटेज निकली और रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। लाइकवाइज फिर आई इंक्रीज होके 3 हो गया, तो 3 के केस में 95.0 है वैल्यू, तो उसकी कैलकुलेशन होगी। सो फॉर एवरी रो एवरी वैल्यू विल प्रिंट एवरीथिंग, ठीक है। लास्ट वाले केस में उसकी परसेंटेज 23 आ गई, तो वो फेल्ड कैटेगरी में आ गया, राइट। दिस इज हाउ एरेज वर्क। अब हमारे एग्जांपल में तो वी हैव यूज ओनली 5 वैल्यूज नाउ, so you can use a number of values like in 20 30 40 values you can use, right, and then that can be processed and used accordingly, right. So that's all about arrays में यही concepts हैं, इससे ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेम प्रोग्राम यहाँ पे भी है किया हुआ बुक में, ठीक है। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, कॉमन कोडिंग एरर्स व्हेनेवर यू डू द कोडिंग, हम लोग क्या गलती करते हैं वो ध्यान में रखनी चीज वाली चीजें हैं। इफ एन ऑफ बाय वन एरर loop index if verified from 0 to n instead of 0 to n-1, sometimes हम लोग क्या करते हैं, ये equal to डाल देते हैं। इसका मतलब we have started from 0 तो it should end by 4, अगर वो 5 वैल्यूज है, array size 5 है तो मतलब वो 5 बार लूप चलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, i 0 से शुरू करना है। 0 से क्यों, इंडेक्स नंबर पहला 0 होता है, तो इसलिए ये वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 रॉन्ग है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 या अकेला लेस देन 5 या इक्वल टू हटा दो, राइट। इंस्टेड ऑफ 0 to n विल यूज 0 to n-1, राइट, एक कम, so we'll write less than equal to 4
या लेस देन 5 ले लो। लेस देन 5 भी वही हुआ, 5 से कम तो 4 तक ही चलेगा, राइट। In this case, an array index out of bound error occurs and the program terminates unexpectedly without an errors with an error message given. Like this, you will get one array error, right? So यहाँ लिखा होगा exception is a main thread. ये error आएगा. Fine. So that's it about arrays. इसके बाद एक टॉपिक है यूजर डिफाइंड मेथड्स। अच्छा, अभी तक हमने जितने मेथड्स देखे थे, सेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट, या अभी इससे पहले हमने रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस के बारे में देखा, बहुत सारे मेथड्स उसमें थे, राइट। गेट सेलेक्टेड वैल्यू, सो लाइकवाइज। सो ये जो जितने भी मेथड्स हैं ये रेडीमेड है, मतलब दे आर ऑलरेडी इनबिल्ट मैसेज, यू कैन से दे आर ऑलरेडी देयर इन द सॉफ्टवेयर, यू जस्ट हैव टू नेम देम and give a value to them and we'll get the output of it. Now let's say I want to create my own method. मैं एक अपना मेथड बनाना चाहता हूँ कि जो मेरे हिसाब से आंसर को प्रोड्यूस करे, right? So that option is also available in Java, right? उसको हम लोग कैसे करते हैं? अब मेथड जब भी बनता है तो मेथड का हमें पहले तो रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। रिटर्न टाइप मतलब वो मेथड हमें किस तरह का आंसर देगा, क्या वो हमें पहली चीज तो है कि क्या वो हमें रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, राइट। सेकंड थिंग इज कि वो रिटर्न करके इंटीजर टाइप वैल्यू देगा या फिर कैरेक्टर टाइप देगा या स्ट्रिंग टाइप देगा, दैट वी नीड टू डिफाइन। फिर हम उस मेथड का नाम लिखते हैं कि क्या मेथड का नाम क्या होगा, राइट। और फिर हम उसमें पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। पैरामीटर्स मतलब कौन कौन सी वैल्यू जो है उस मेथड के अंदर यूज होंगी, ठीक है। तो ये मतलब ऑप्शनल होता है, पर ज्यादातर हम पैरामीटर्स दिया करते हैं। पैरामीटर्स ये होता है कि मान लो मैंने दो नंबर्स को प्लस करके आंसर शो करना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस मेथड को जो भी वैल्यू मैं पास ऑन करूँ, मैं दो वैल्यूज हमेशा पास ऑन करूंगा और ये मेथड मुझे दोनों का प्लस करके आंसर रिटर्न बैक कर दे, ठीक है। तो ये पॉसिबल कैसे है? मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे। पैरामीटर मतलब दो वेरिएबल, एक एक्स और वाई ले लेंगे, राइट। Then those x and y will have those two values, and then we have to calculate as per the requirements, and then simply return the statement. Do you need to have statements here जिससे calculations होंगी? जैसे addition के केस में दोनों को ऐड करके एक नए वेरिएबल में डाल दिया, उस वेरिएबल की वैल्यू को हमें रिटर्न भी करना है, क्योंकि जब भी इस मेथड को वैल्यू पास होगी तो मेथड वैल्यू रिसीव करके पैरामीटर्स में डालता है, फिर पैरामीटर्स के बाद कैलकुलेशंस करेगा, फिर जो आंसर आएगा वो रिटर्न बैक करेगा, ठीक है। तो हर मेथड का वर्क ऐसे ही होता है। उस मेथड को हम लोग पहले वैल्यूज पास करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पास करने का एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, फिर उस मेथड में कैलकुलेशंस होंगी और वो रिजल्ट रिटर्न बैक करेगा, राइट। तो रिटर्न स्टेटमेंट हैज टू बी यूज्ड हियर। देन मेथड्स की जो जितनी स्टेटमेंट्स उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हमेशा। वाह जी वाह, ये कौन है? May I know who is this before I remove this? ये है कौन? Yes. जो की क्लास होती है, ये कौन है? यस्मिन, यस्मिन आप कर रहे थे? yes, sir. No sir. स्क्रीन पे स्प्रिंकलिंग कौन कर रहा था?
कोई नहीं, I have the controls, I'll control that fellow, don't worry, whosoever it is. लो पेन ही बंद कर दिया मैंने तुम लोग के, अब करो. Okay, so my point was that we can create these kind of methods, and every method can give you the answer, right? See, यहाँ पे इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है. मेथड नेम इज द वर्ड फॉलोड बाय राउंड ब्रैकेट्स. सी, एक ये भी ध्यान रखो कि जितने भी वर्ड्स के बाद राउंड ब्रैकेट्स आता है मतलब वो मेथड है. गेट एक्सेप्टेड के बाद हमने देखा होगा राउंड ब्रैकेट्स लगती हैं, वो मेथड्स होते हैं, राइट? तो ये कुछ ना कुछ आपके वैल्यूज को मैनिपुलेट करके आंसर प्रोड्यूस करते हैं, राइट? The parameter list placed within the round bracket allows data to be passed into the method. So जो पैरामीटर हम लोग, जैसे ये एग्जांपल देखो, स्टैटिक डबल रेक्टेंगल एरिया, डबल डेटा टाइप मतलब डबल डेसिमल वाली नंबर्स की वैल्यूज एंटर होंगी, वही रिटर्न होंगी. स्टैटिक में जो एक बार आ गया वो चेंज नहीं होगा. रिटर्न रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया उस मेथड का नाम है. ब्रैकेट में दो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ. लेंथ विल हैव दी लेंथ वैल्यूज एंड ब्रेड्थ विल हैव दी ब्रेड्थ वैल्यू. जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हम दो वैल्यूज पास करेंगे. तो दो वैल्यूज पास होके एक लेंथ वेरिएबल में आएगी, एक ब्रेड्थ वेरिएबल में आएगी. पास कैसे कैसे होता है, पासिंग स्टेटमेंट आगे करेंगे हम. और दोनों को के अंदर डबल डेटा टाइप्स लगा दिए ताकि उनमें भी डबल वैल्यूज आ सके, राइट? सो so the variables of the parameter list just acts like local variables inside the method body. तो ये local variables की तरह काम करते हैं, मतलब हमने जो यहाँ पे variables लिए, जो वैल्यूज यहाँ पे हुई, उन वेरिएबल्स को हम इस ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, राइट? एंड दिस मेन बॉडी इज रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स, राइट? सो वी डू द कैलकुलेशन, वी हैव मल्टीप्लाइड दीस टू वैल्यू, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर आया वो हमने रिटर्न कर दिया. रिटर्न मेथड जो है, जिस जगह से हमने इस मेथड को वैल्यू पास ऑन की थी, जिस लोकेशन से, वहां पे वैल्यू आंसर को रिटर्न कर देता है, राइट? तो अब ये जगह का चक्कर क्या है वो मैं आगे दिखाता हूँ. स्टैटिक लिखने का तरीका मतलब क्या था? इट अलाउज अस टू कॉल दिस मेथड विदाउट एन इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए बिना कि जब मेथड कॉल किया जाता है तो at time that object is created, so call is made to the method without invoking the object, without asking the object. ये object वगैरह क्या है हम आगे आएंगे, क्लासेस का कंसेप्ट थोड़ा आगे आएगा. तो let's make it simple. तो ये मैं बता रहा था अभी कॉलिंग कैसे करनी है. ये देखो जी, ये कॉलिंग करने का तरीका है. ये हम है void main में. ये मेन जो होता है, मेन वो मेथड होता है जिसके अंदर पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनता है. अब जो हमने पिछले किए जितने भी कंट्रोल्स वाले किए थे, रेडियो बटन्स वाले या फिर चेक बॉक्सेस वाले, या जो भी हम कोडिंग कर रहे थे, बटन्स के अंदर कोडिंग कर रहे थे, उनके बटन पे डबल क्लिक करते थे तो कोडिंग विंडो ओपन हो जाती, वहां पे मेथड अपने आप बन जाता था, ठीक है? एक्शन परफॉर्म मेथड नाम से बनता था. तो वो बेसिकली वो वर्क कैसे करता है कि अगर आप उस कोडिंग एरिया को ध्यान से देखो, उसमें एक मेन मेथड्स भी होंगे, राइट? वो मेन मेथड इज द मेन एरिया फ्रॉम वेयर द प्रोग्रामिंग द कंपाइलेशन स्टार्ट्स. जब कंपाइलर रीड करना शुरू करता है प्रोग्राम को, पहले मेन मेथड को रीड करता है. तो मेन के अंदर सारे कंट्रोल्स के इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली बनते थे जब वो फॉर्म बनाते थे. यहाँ पे क्या होता है कि जब आप क्लासेस या एरेज या मेथड्स के सेल्फ यूजर डिफाइंड मेथड्स की काम करोगे तो आपको सब कुछ खुद डिफाइन करना पड़ता है. तो
we all work in the main method, right? So this is how main method starts. Public static void main, and then string arguments are to be array arguments are to be passed. So this statement तो as it is आनी है. फिर curly bracket के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया a0, उसको असाइन कर दिया 0, a लिया है. a के इक्वल टू क्या किया, a को असाइन क्या किया, इनिशियली इट वाज 0, देन इसमें हमने एक स्टेटमेंट लिखी है ये. अब ये क्या है, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया और ब्रैकेट आ गई ना, कर्ली ब्रैकेट. इसका मतलब ये एक मेथड है, उस मेथड को ये दो वैल्यूज पास कर दो. So these two values 45.5 and 78.5 are passed to this method. ये मेथड क्या है, ऊपर हमने अभी ये एग्जांपल बनाया था, ये वाला, राइट. रेक्टेंगल डॉट एरिया में वो दो वैल्यूज पास हो जाएंगी. पहली वैल्यू लेंथ के लिए, दूसरी वैल्यू ब्रेड्थ के लिए. उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और रिटर्न कर दिया जाएगा. मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आया, दैट इज रिटर्न टू दिस वेरिएबल a, राइट. तो इस जो भी रिटर्न स्टेटमेंट में आंसर निकलेगा वो a को असाइन कर देंगे. a को हमने प्रिंट कर दिया तो हमारा एरिया प्रिंट हो जाएगा. बेसिकली हम ये सारी चीजें एक प्रोग्राम में भी कर सकते हैं. ये सिर्फ समझने के लिए छोटा सा एक एप्लीकेशन बनाया. अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस मेथड को सिर्फ मेन से हम वैल्यूज पास करते हैं, हमारा मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है, उसको हम प्रिंट कर देते हैं. तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो एक प्रोग्राम के अंदर एक सॉफ्टवेयर आप मान लो बना रहे हो, उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस की करने की जरूरत है, तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं मेथड्स यूज करें कि हमें whenever we need methods, we create methods, we get only कि हमें बार बार चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती. अदरवाइज अगर यहाँ पे तो चलो दो ही स्टेटमेंट है, अब इस एग्जांपल में तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लिखी है. कई बार ऐसे मेथड भी होते हैं जिसमें लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, राइट. सो इन दैट केस वी हैव टू राइट. अदरवाइज अगर हम ये मेथड्स ना बनाए तो ये सारा कुछ हम लोग मेन मेथड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप यहीं पे जो नंबर्स दो लिए उनके लिए दो वेरिएबल्स लो, फिर उनको मल्टीप्लाई करो और उस वेरिएबल को प्रिंट कर दो, राइट. बट ये मेथड बनाने का फायदा क्या कि हम एक लाइन में उनको वैल्यूज पास करें और वो हमें रिजल्ट देता जाता है. अगर मान लो कुछ ऐसे पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मान लो आपने 20 टाइम्स करनी है एक प्रोग्राम के अंदर, तो हमें वो 20 टाइम वो इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेगी, ठीक है. टू अवॉइड दैट हम उन 20 लाइन्स को, 20 स्टेटमेंट्स को एक मेथड के अंदर डालेंगे और सिर्फ एक लाइन से उनको कॉल करेंगे, जैसे ये किया हुआ है, और हमें उसका आंसर मिल जाएगा. तो 20 टाइम्स वी कैन डू दिस. हम यहाँ पे फॉर लूप लगा दें, 20 बार इसको चलाएं फॉर लूप को, तो 20 टाइम्स ये आंसर सारे जो हो जाएंगे, राइट. So it is always easy for us to manage things on by using method, right. See, this is completely given when we call the rectangle area method. जब हमने यहाँ पे method को call किया, we supply the length and breadth of the rectangle as arguments in the method call. Arguments मतलब ये जो values हैं, तो हम ये लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज जो है यहाँ पे एज आर्गुमेंट्स मेथड को सप्लाई करते हैं. So the arguments with which the rectangle area method is called are copied into the parameters. ये जो आर्गुमेंट्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं, वो इन पैरामीटर्स को कॉपी कर दिए जाते हैं, राइट. तो ये यहाँ से जब फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल के बाद जो फंक्शन बॉडी है उसके जो पैरामीटर्स हैं उनमें ये वैल्यूज कॉपी हो गई, राइट. तो जो पहली वैल्यू वो पहले पैरामीटर में, दूसरी वैल्यू दूसरे पैरामीटर में कॉपी हो गई, राइट. देन मेथड इज एग्जीक्यूटेड, मेथड एग्जीक्यूट होगा और इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द मेथड व्हिच इज कॉपीड इनटू द वेरिएबल ए. तो मेथड ने जब कैलकुलेशन की, ये मल्टीप्लाई करके इतना आया आंसर, तो ये शो तो नहीं होगा, वो सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर देगा और रिटर्न होके वो असाइन हो जाना है इस ए वेरिएबल. When you print this a variable, it will print this multiplication answer, right. So right. So this also
if you want to do this, you have to create one class, new class like this, जैसे हमने पहले किया. इस नाम से क्लास ऑलरेडी है, मैं इसके 2 लगा देता हूँ आगे. राइट, ये जो पहले सा कोड है ये आप हटा सकते हो. बैक स्पेस में रिमूव कर देता हूँ. ये देखो अपने आप क्लास नाम से बन गया. आपको जो कुछ भी करना है आप इस क्लास में कर सकते हो. फर्स्ट लाइन जो है, I'll copy it from here, right? Then we need to write the next part of the statements. We can copy it from this place also. So ये आपका main, ये main method का डेटा है. मैंने main method में डाल दिया. Fine. Then और ये अपना method that we have created. कोई ब्रैकेट कॉपी नहीं हुआ, चलो नो प्रॉब्लम, बाद में करेंगे. उसको मैं ऊपर प्रिंट टाइप वो कर देता हूँ. Right, so this is the method that we have created and this is the main method. Right, so when you run this, what happen is it will run the main method first. डबल में हमने 0.0 नहीं लिखा, इसलिए वो कह रहा भाई इसमें गड़बड़ ना हो, ध्यान रखो. anyhow let it be 0 only, then there is no problem. Let's run this file. Right, so area of the rectangle is equal to 3571.75. Right, so area is automatically calculated. यहाँ से 2 पैरामीटर्स पास होके लेंथ और ब्रेड्थ में आ गए. लेंथ एंड ब्रेड्थ मल्टीप्लाई किया और रिटर्न कर दिया. रिटर्न होके वो a में आ गया, a को हमने प्रिंट कर दिया. फाइन. So that's all about this arrays and user defined functions. All lot of other things are also there, but we'll do it after the exams. So we'll start with the revision process in the next time, right? We'll end up today. If you have any doubts and all, you can ask me anytime.